Okay, so the production of antibodies is an important process in the use of immunoassays because it is the antibody antigen complex. Um, जो ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है although it is the part of the immune system but it has more applications and nowadays this is more important like other than the immune system as well like पहले तो सिर्फ इसको immune system में देखा जाता है लेकिन आजकल जो है ये बहुत important है different immunoassays और different like techniques हैं जिसमें detection techniques use होते हैं like उसमें antibody antigen complex को like use किया जाता है ये diagram जो आपको नजर आ रहा है like if you can see these are the different the antigenic epitopes. The epitopes are there on the antigen and the antibodies are there. Antibodies can specifically bind to the antigens and to the antigen and these antigen could be recognized with these antibodies like antibodies किसी specific antigen के against है तो वो antigen जो है वो recognize हो सकता है with these antigens. So after that, antibodies can be called monoclonal or polyclonal, like depending upon the technique used to produce them. So um, अब हम जो है एंटीबॉडीज जो है वो लाइक एंटीबॉडीज जो है वो मोनोक्लोनल भी हो सकते हैं पॉलीक्लोनल भी हो सकते हैं मींस के एक बी सेल अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे तो वो एक टाइप के बी सेल प्रोड्यूस करेगा तो वो सारे मोनोक्लोनल होंगे मींस के सेम टाइप के होंगे और सिर्फ स्पेसिफिक एपिटोप के अगेंस्ट होंगे पॉलीक्लोनल एपिटोप पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज वो एंटीबॉडीज हैं जो मुख्तलिफ क्लोन्स बी सेल्स के डिफरेंट क्लोन्स होंगे वो उनको प्रोड्यूस करेंगे और उनकी स्पेसिफिसिटीज डिफरेंट होंगी मींस के वो डिफरेंट एपिटोप्स को कम रिकॉग्नाइज करेंगे एंड दैट इज द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज सो in context of their recognition like जो recognition sites होंगे या specificity होगी recognition specificity so उनके different recognition specificity होगी so that's the difference between monoclonal and polyclonal antibody and polyclonal antibodies को अगर हम देख लें so they are produced in mammals such as rabbits sheep so ये polyclonal antibodies जो हैं like antibodies जो हैं वो mammals में produce हो सकती हैं when a foreign substance enters the body it stimulates the immune system to produce antibodies to the substance so जैसे ही कोई foreign like substance आता है and that's considered as foreign so जो foreign consider होते हैं substances तो उनके अगेंस्ट फौरन जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं ठीक है सो फॉरन के अगेंस्ट फौरन जो है वो एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस होते हैं तो उनको लाइक they have like multiple if we could isolate the antibodies from mammalian like cells like mammalian serum से अगर हम उसको collect कर लें so that could be the like that could be polyclonal और polyclonal क्यों होंगे क्योंकि मैमल्स या जो भी एनिमल हैं वो एक्सपोज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस को एंड दोज वर रिकग्नाइज्ड इन द लाइफ स्पेन और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती रहती हैं एंड वो द एंटीबॉडीज सर्कुलेट इन द सिस्टम सो व्हेन वी लाइक कलेक्ट द एंटीबॉडीज they could be of different specificities so and therefore they were known as polyclonal antibodies and after that using this natural reaction an annihilate is as pure from as possible in an as pure form as possible is injected in the animal stimulating the production of antibodies so अब करते क्या है कि लाइक हाउ वी कैन प्रोड्यूस देम नेचुरल रिएक्शन को इसी नेचुरल प्रोसेस को यूज करते हैं फिर क्या होता है कि एन एनालाइट इन एन एज प्योर फॉर्म एज पॉसिबल इज इंजेक्टेड इन अब हम करेंगे क्या लाइक हाउ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज प्रोडक्शन इस तरह होते हैं लाइक कोई भी लाइक प्रोटीन ले लें और इंजेक्ट करें in the animal blood या animal like उसमें इंजेक्ट करें और पेरिटोनियल कैविटी में लोग कर देते हैं ओके सो व्हेन इंजेक्ट दैट सो वहाँ पे क्या होगा कि उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं व्हेन द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड हियर सो दोज एंटीबॉडीज कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम देयर and because that the substance that we have injected into the animal that has been considered as a foreign and the animal is producing the antibodies against that foreign substance and anti-sera or anti-serum
usually contains a mixture of antibodies that recognize and bind to the same antigen, but they may attach to different epitopes. So एंटीसीरा या एंटीसीरम जो है उसमें लाइक हम कोई एक प्रोटीन हम इंजेक्ट कर देते हैं एनिमल के अंदर, सो उसकी जो एंटीसीरा है लाइक उसमें क्या होगा कि मल्टीपल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, इवन दो दे आर फॉर द सेम एंटीजन, बट दे विल रिकॉग्नाइज डिफरेंट एपिटोप्स, ये डिफरेंट एपिटोप्स के साथ बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज डिफरेंट एपिटोप्स दे बाइंड देयर एंड द कलेक्शन ऑफ दीज एंटीबॉडीज विल बी नोन एज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। समझ आ गई है? यस सर। सर जी जी। मैंने ये पूछना था सर, जो पॉलीक्लोनल होती हैं उसमें सिंगल एंटीजन के ऊपर डिफरेंट जो एपिटॉप्स होते हैं उनके साथ आके डिफरेंट एंटीबॉडीज अटैच होती हैं, तो मोनोक्लोनल में क्या सिंगल एपिटॉप के साथ अटैच होती हैं? हाँ, पॉलीक्लोनल में ये होगा कि एंटीजन के ऊपर नॉर्मली डिफरेंट एपिटोप्स होते हैं ना, या यहाँ पे भी शो किए गए हैं यस डिफरेंट सर, वो एपिटोप्स डिफरेंट हैं। एपिटॉप्स के ऊपर डिफरेंट हाँ एंटीबॉडीज, लेकिन सिंगल एंटीजन के ऊपर जो डिफरेंट एपिटॉप्स होते हैं। हाँ, सो मोनोक्लोनल के केस में क्या होगा कि ये सारे एंटीबॉडीज लाइक ये सर्कुलर एपिटोप है तो सिर्फ इसके साथ बाइंड होंगे, बाकी किसी के साथ बाइंड नहीं होगा, कोई भी एंटीबॉडी कहीं और बाइंड नहीं होगा, सिर्फ इसके साथ बाइंड होंगे। ओके सर, ठीक ठीक। है। अच्छा, कोई इसको एक्सप्लेन कर देगा फॉर दोज हु जॉइन नाउ, और लाइक कोई किसी को समझ नहीं आए तो लाइक सबके लिए फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? हु विल एक्सप्लेन? मैं कह देता हूँ। जी जी प्लीज। एक्चुअली हम यहाँ पे एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस वक्त जो है दो टाइप्स की एंटीबॉडीज होती है, मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल क्लोनल। फिलहाल पॉलीक्लोनल क्लोनल ये होती हैं कि इसमें ये होता है कि हमारा जो प्लाज्मा सेल या बी सेल होता है वो जो पैथोजन या कोई भी चीज या एंटीजन होता है उसकी एक डिफरेंट एपिटॉप्स को रिकॉग्नाइज करता है और एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इसमें ये होता है कि एक एंटीजन में भी कंटेन मोर देन यानी वैरायटी ऑफ एपिटॉप्स। तो जो एपिटॉप्स एक बी सेल से रिकॉग्नाइज्ड होगा तो वो एक डिफरेंट एक स्पेसिफिक एपिटॉप के लिए एक एंटीबॉडी बनेगी। सेम ही एंटीजन पे अगर दूसरा एपिटॉप होगा उसकी एंटीबॉडी डिफरेंट बनेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि एक एग सेल ले लें या किसी के अंदर भी ले लें, तो हम उसके एंटीसीरा में कोई भी एंटीजन डाल देते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो डिफरेंट एपिटॉप्स की वैरायटीज के मुताबिक जो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं वो पॉलीक्लोनल होती हैं, क्योंकि उसमें सेम एंटीजन की डिफरेंट एपिटॉप्स के मुताबिक डिफरेंट एंटीबॉडीज बन रही हैं, तो उनको पॉलीक्लोनल कहा जाता है। तो अभी तक सर हमने इतना पढ़ा है। यस एग्जैक्टली। अच्छा, अब अगर मैं कोई एग्जांपल देना चाहूँ लाइक HCV हम ले लेते हैं, हम बार बार यही एग्जांपल देते हैं क्योंकि लाइक मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इसका ये एप्लीकेबल बहुत ज़्यादा है, और लाइक एक्चुअली नोन विद HCV मोर। एक्चुअली इफ आई वांट, लाइक आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? यस सर। Okay, that's good. Okay, if I want like to produce antibodies against HCV, and I want like once I get the antibodies, I can detect HCV in the patients with these antibodies that I could produce. I am going to produce. So what I will do? I will first isolate antibody. I will first isolate the virions of the virus particles. Actually, I will isolate virus particles, or I will express the core protein of that virus. Okay. Once I get the viruses, like the particles of the viruses are the core protein in pure form. In pure form, like if you can see here, it has been written that in the pure form we will take, because it should not like in fact like it should not give damage or produce damage in the animal. So in the pure form, I will inject that in the mice, sheep, rabbit, horse, or any like animal, mammal. So once I inject that, that animal will produce antibodies against that protein or that like virus particle. So once the antibodies are produced, now what will I will take the blood out of the animal, like I will take the blood
from the animal, and I will like centrifuge that and will take the anti-sera like the supernatant, and the supernatant is now called anti-sera because it will have the antibodies in there. So I can use now these antibodies like if I have blood from the patient, I can identify viruses in the blood of the patient of any sample. So this is how polyclonal antibodies are produced. But the problem with polyclonal antibodies is that it cross-reacts with it has a lower specificity because it has multiple types of antibodies, and it has like lower titer and these sort of stuffs. So precisely what we need is to have monoclonal antibodies. So हमें monoclonal antibodies चाहिए होती हैं. Let me check the chat. Is just my network weak or the network officer is lagging? I don't know. Like, अब सबको आवाज आ रही है? Hello. Yes sir, आ रही है. आ रही है? Yes sir, आ रही है. Okay, so जो एंटीबॉडीज है हमने क्या करना है, वी नीड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. And how to produce monoclonal antibodies, let's check this out. Monoclonal antibodies, they are produced by the cell culture techniques. हम cell culture techniques के through हम monoclonal antibodies produce कर सकते हैं. ठीक है. Production results in very specific antibodies that bind only to one एंटीजन एपिटोप, जिसके लिए स्पेसिफिक होगा तो सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक ही एपिटोप के साथ बाइंड करेंगे, बाकी कहीं पे बाइंड नहीं करेंगे. ठीक है. सो दे विल बी मोर स्पेसिफिक. सो हाउ वी कैन प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, लेट्स चेक दिस आउट. लाइक हियर वी इंजेक्ट एंटीजन into the mice body. Now take antibody producing plasma cells or B cells. We take this out of the mice then, and we also need cancerous plasma cells because this is the normal plasma cell. We will also need. अभी distortion है? Yes sir. Okay, so अभी ठीक है या अभी भी डिस्टॉर्शन है? सर अब ठीक है. Okay, so what I want to say is I will need an antigen, inject that into the mice, take B cell or also called plasma cell from the mice, okay, take B cell or plasma cell from the mice and fuse that plasma cell with cancerous plasma cell. So when these two cells are fused, this will be called as hybridoma, because hybrid, half of the cell will be like normal, half of the cell will be cancerous. Like by fusing this, we will get hybridoma cell. This hybridoma cell, now this hybridoma cell has the like capacity to multiply indefinitely. Like it will multiply up till like it will not limit the multiplication, and it will multiply indefinitely and infinitely actually, and it will produce antibodies as well because it has both properties. Now once we get the antibodies, we can, like in the culture, now we can inject the hybridoma into the mice again, and this mice will produce monoclonal antibodies for us because the hybridoma will produce cancer. But this is a problem in the mice because it will produce cancer within the mice as well. Or we can multiply, we can get the antibodies in the cultures from the hybridoma cells, and we can use these monoclonal antibodies from the culture. Or we can transfer this hybridoma cells and like we can purify monoclonal antibodies from the culture. Is it clear? Sir, hybridoma cells क्या होता है? Okay, hybridoma cells क्या होते हैं?
इसको समझ लें। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पे इसको इंजेक्ट करूँ किसी एंटीजन को, तो इस माइस के अंदर बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स को बी सेल भी के बहुत सारे बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएंगे, सो वो बहुत सारे डिफरेंट सेल्स होंगे इस जिसकी एक सेल के जो एंटीबॉडीज हैं वो किसी एक एपिटोप के अगेंस्ट होंगे, कोई और बी प्लाज्मा सेल होगा वो किसी और एपिटोप के अगेंस्ट होंगे। सो मैं क्या करूंगा, मैं एक बी सेल लूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा। But the problem with this single cell is it will not replicate in the culture because it has a short lifespan. So I need this cell to multiply indefinitely, infinitely it should multiply, but it could not multiply because it has short period of lifetime. So now I will purchase cancerous cells, like cancerous cell, B cells. Like agar ye, if this is from the mice, I need to have the B plasma cell from the mice. Or if this is in the rabbit, I will need cancerous plasma B cell from rabbit. Or if this is from horse, I will need this plasma cell from horse. So I need it to have the same copy of the cell, but this is cancerous. Only one or two genes will change, and it is cancerous now. It will multiply. Now I will fuse, but this is not producing normal antibodies. The antibody that is specific to this epitope, this will not produce that antibody. Even though it is producing some certain types of antibody, but that is not specific to this epitope. And this cell will produce antibodies that will be specific to this epitope. Now, when I fuse these both cells, now what will happen? It will produce, it will divide in the culture for indefinite period of time, and it will produce the specific antibodies against specific antigens. Now, these antibodies will be monoclonal antibodies. These hybridomas, these hybrid cells can be injected back into the cell, into the mice, and there these cells will multiply, these hybrids will multiply, or it can be directly used to produce our monoclonal antibodies. Up till सर now इसमें it's बस clear? ये सर बस इसमें इसलिए इसको उसके साथ हाइब्रिडाइज किया ताकि हम उसका प्रोडक्शन रेट इंक्रीज कर सकें मोनोक्लोनल का। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कलीमुल्ला, कलीमुल्ला है? यस सर, यस सर। जी, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसको प्लीज। असल सर में पहले कलीमुल्ला, हमने इसमें कलीम मेरे लिए बहुत आसान है, मैं उर्दू में ही बताऊं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, that could be medium of instruction is English. Don't आप अपने टीचर्स को फोर्स ना करें कि वो आपको उर्दू में समझाएं प्लीज। हमें आप लोग इसके लिए पे कर रहे हैं, एंड आप किसी उर्दू मीडियम में भी जा सकते हैं, लेकिन यू आर पेइंग फॉर दैट। ठीक है, सो ट्राई अपने अपने इजी के लिए, इजीनेस के लिए ना करें, ये चीजें आपको फिर भी समझ आ जानी है, लेकिन ट्राई टू आपको जो सर्टिफिकेट जो सारी चीजें हैं वो सर आपकी आवाज नहीं आ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। So please try to stick with. ओहो, ओके, अभी आ रही है? यस सर, अब आ रही है। सर आ रही है। अच्छा करीमुल्ला प्लीज एक्सप्लेन कर दें इसको, जितनी समझ आई है आपको वो बता दें। सर हम पहले इसमें एंटीजन इंट्रोड्यूस किया, फिर एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल बने जिसको हमने हाइब्रिडोमस का, फिर उसको हमने कल्चर में ग्रो किया, उसको कल्चर में ग्रो करने के बाद फिर उसको हमने इंजेक्ट किया इसमें माउस में, फिर उसके बाद हमें वो प्रोडक्शन हुई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई और एक्सप्लेन कर दे, कोई कर देगा एक्सप्लेन?
असल में मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि इसमें कौन से मीडिया यूज हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से लाइक स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल हैं, बिकॉज दिस इज फुल फ्लेज अनदर टॉपिक। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन जो है वो पूरा एक टॉपिक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हम जस्ट टच कर लें इसको, लाइक हमें थोड़ी सी समझ आ जाए इसकी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किस तरह होते हैं, ठीक है। सो कोई भी एक्सप्लेन कर दें ताकि वो बातें हम यहीं पे डिस्कस कर लें बातों में, लाइक सर मैं कर दूं। जी जी प्लीज करें प्लीज। सर इसमें ये लिया कि हमने पहले एक एंटीजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया माउस में, और फिर उसके बाद हमने उसके बी सेल्स ले लिए। अब जो हमारे पास बी सेल्स है वो अकेला रेप्लिकेट नहीं करता, क्योंकि उसकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत शॉर्ट है। इस वजह से फिर हमने कैंसरस सेल्स भी ले लिए माउस से, और फिर जब उनको फ्यूज करवाया तो उससे हाइब्रिडोमा सेल्स बन गए, और फिर सिर्फ उन्होंने आगे रेप्लिकेट किया और उन्होंने फिर आगे एंटीबॉडीज बनाई जो मोनोक्लोनल थी। तो फिर हमने उनको माउस में इंजेक्ट कर दिया और फिर हम उससे अकेला भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलें अगर हम थोड़ा सा इसको एक और पर्सपेक्टिव में देख लें, लेट्स सी दैट। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है ना? यस सर। किंजा, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? यस सर। सर जी जी। पूछना है कि माइस में इंजेक्ट करने के बाद इससे माइस को कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, ये असल में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इस स्लाइड के आखिर में हम इसको कवर करेंगे, बिकॉज दिस इज अगेन द सेम थिंग इन अनदर पर्सपेक्टिव। असल में मैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में नहीं जाना चाह रहा, ये जस्ट वहां से मैंने कुछ पिक्चर्स ली, बिकॉज दैट इज फुल फ्लेज अनदर टॉपिक। वहां से मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर दें और यहीं पे डिस्कस कर लें ताकि हम अपने टॉपिक पे फोकस रहें। अच्छा, सो ये माइस, किंजा ये माइस वाला हम डिस्कस करते हैं इसी स्लाइड के ऊपर। देखें इस स्लाइड में अगर आप देखें अपने लेफ्ट साइड पे इस ये वाइट माइस दिखाया गया है, एंड दिस माइस हैज लाइक वी इंजेक्ट एंटीजन इनटू द माइस। वहां से हम स्प्लीन के सेल लेंगे, स्प्लीन सेल हैज बी सेल्स, और साथ में हमारे पास कल्चर में माइलोमा सेल्स होंगे, मींस कैंसरस सेल्स होंगे। सो कैंसरस सेल्स ऑफ द सेम टाइप, सो वी विल फ्यूज these both type of cells। स्प्लीन सेल्स को इन्होंने रेड दिखाया हुआ है और माइलोमा सेल्स को इन्होंने ब्लू दिखाया हुआ है। we fuse them, हम इसको फ्यूज कर देते हैं, और फ्यूज किस में करेंगे? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल में, मींस पैग में। So polyethylene glycol is a chemical and we will is a fuse agent है ये असल में, and हम इसको फ्यूज करेंगे इन सेल्स में, इन सेल्स को। अगर आप इस कल्चर को इसको देख लें, इस ट्यूब में देख लें, तो you will have visible like myeloma cells in blue, red cells in that represent the spleen cells, and you can see some cells that have two colors like that, those सर आपकी आवाज फिर से कट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाइब्रिड। सो ये हम जब इन हाइब्रिड सेल्स को, इज इट क्लियर? सर पीछे आपने जो भी बोला हमें बिल्कुल आवाज नहीं आई। ओके, असल में सर नहीं, मोबाइल पीछे बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन थी, हमें पीछे से समझ नहीं आया। असल में ये सर मोबाइल जब नेट है। इस ओके, यूज सो मोबाइल नेट है, उस पे जब कॉल आ जाती है तो सारा कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब हर बंदे को मैं बता भी नहीं सकता कि इस टाइम कॉल ना करें, लेकिन चलें खैर। अब लेट्स स्टार्ट इट अगेन। वी हैव अ माइस, वी इंजेक्ट द एंटीजन इनटू द माइस, we extract the spleen cells from the mice, and at that time we will also need myeloma cells, and we will culture myeloma cells, we will take myeloma cells and will fuse spleen cell with myeloma cells। हम spleen cell और myeloma cell को fuse करेंगे। For fusion of spleen cells, like this will be B cells and this will be also B cells, but they are cancerous actually. For fusing these two types of cells, polyethylene glycol is used. This is one of the fuse agent, like they will fuse the two cells. It will extract the water and the cells will fuse.
Now you can see there are three types of cells: the blue cells that will represent myeloma cells, the red cells that will represent spleen cells, and the cells that has two colors that will mean they are hybrids. So now select and grow hybrid cells. Now select cells making antibody of desired specificity. Now we get the hybrid cells only. Once we get the hybrid cells, it will produce antibodies, and we will be needing those cells that produce our desired antibody for specific antigen. Now what will we do? We will we will grow in mass culture, and we will get antibodies from that. Alternatively, we can freeze these cells for longer time, or we can thaw it again for getting antibodies. Once we have this in this culture, we also have the opportunity to inject these hybridoma cells into the mice, but there it will produce tumors. And this is actually this will hurt the सर दोबारा आवाज चली गई। सर आवाज नहीं आ रही। the mice antibodies. Okay, ऐसे में दोबारा कॉल आ गया, एक मिनट वेट करेंगे। सॉरी, इसमें वो बार बार कॉल आ रही थी। तो नाउ कहाँ तक समझ आई ये बताएं। सर जहाँ तक आपने कहा कि वो उसके अंदर ट्यूमर्स बन जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। सो यहाँ पे जब हम माइस के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं हाइब्रिडोमा को, तो हाइब्रिडोमा ने वहाँ पे विगोरसली मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट विल प्रोड्यूस ट्यूमर्स इन द माइस। ठीक है, बट we can get antibodies, the monoclonal antibodies from the mice as well, but although this is this is at the stake of the animal health. असल में ये मजबूरी भी है इसमें करना, like this will अगर हमारे पास फैसिलिटी अच्छी नहीं है लैब सेल कल्चर लैब की, so this is the only way to do that. यहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं, you just inject that and that will multiply and that's it. Okay, आप another aspect, आपको अगर right side पे ये diagram, if that is visible to you, if you can see at the start we inject an antigen into the mice, and that antigen has like these 4 types of epitopes. Now these 4 types of epitopes, the mice will produce 4 types of antibodies against this antigen. Okay, so now if we take the spleen cells from the mice, the spleen cell will have 4 types of cells that are producing each type of the antibody. So now we will fuse these types of cells with myeloma cells, and we will hybridize. Now we don't know which of the cell will be producing our desired antibody. Now we will subculture all these cells, and these hybridoma cells, and each will be producing different types of antibody. Now we can take one of the clone from there, and we can multiply this for the long term, for the subsequent uses. And here if you can see, there are multiple types of antibodies, and they will be for different types of epitopes on the same cell, on the same antigen. यहाँ तक समझ आ गई है? यस सर। सर ये पॉलीक्लोनल के केस में इस तरह करेंगे ना, क्योंकि ये डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं। हाँ एग्जैक्टली ये इनिशियली ये इसको दिखाया गया है कि दिस कुड बी ये चारों एंटीबॉडीज हैं, तो चारों एंटीबॉडीज उसी एपिटोप के ऊपर, इसी एपिटोप के ऊपर चारों एंटीबॉडीज बाइंड करेंगे। बट वी डोंट नीड दिस, वी जस्ट नीड स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी, तो इसमें से हम एक सेलेक्ट करेंगे फिर।
ठीक है, तो अगर कोई इसको एक्सप्लेन कर सके स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट साइड टॉप एंड टू द एंड, हु विल एक्सप्लेन दिस? सर मैं Yes, sir. सर मैं कर जी, देती हूँ। किन्जा कर दें प्लीज। सर इसमें हम पहले माइस में इंजेक्ट करेंगे एंटीजन ताकि एंटीबॉडीज बने ग्रीन सेल में, और उसके अलावा माइलोमा सेल्स होंगे जो कैंसर सेल्स होंगे, उन दोनों को फ्यूज करेंगे स्क्रीन सेल एंड माइलोमा सेल्स को, और फ्यूज करेंगे पोली इथाइलिन ग्लाइकोल में। फ्यूज करने के बाद जो हमारे पास हाइब्रिडोमा सेल्स होंगे उनको फ्रीज भी कर सकते हैं, उनको हम लोग कल्चर में ग्रो करके उनके एंटीबॉडीज भी बना सकते हैं। और उसके अलावा माइस में ना इंजेक्ट करने के बाद हम दोबारा एंटीबॉडी बना सकते हैं, और माइस में इंजेक्ट करने से ये होगा कि कंटेमिनेशन कम होगी और हमारे पास एंटीबॉडीज आ जाएंगी और वो फास्टली ग्रो करेगा जो हमारे पास हाइब्रिडोमा सेल्स होंगे। जी, और इस ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया है सेकंड में? सर इसमें ना ये पॉलीक्लोनल वाला पार्ट है, इसमें क्या नाम है ज़्यादा सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज होंगे और एंटीजन्स होंगे, तो इसमें से बस ये होगा कि हम एक अपने स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन या एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं। So this is actually the polyclonal part is this one, and the rest one is this is the monoclonal part. जी जी, ये monoclonal part ही है, ये इसको थोड़ी सी explanation है different perspective से, ठीक है। So like I think it is clear. कोई अगर कोई बात हो, कोई question हो, like discussion, कोई like comment, any type of thing you want to discuss. सही Sir? ये बताइए कि भी आपने बताया कि पॉलीक्लोनल पार्ट और मोनोक्लोनल पार्ट। जी बताएं क्या? सर अभी आपने बताया ना कि ये पॉलीक्लोनल पार्ट है एक, और जो दूसरे हैं वो मोनोक्लोनल पार्ट्स हैं। जी जी, तो सर वो मैं ये कह रहा हूँ, जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम कोई एंटीजन like that is injected into the mice, it will produce polyclonal antibodies. Like this will be a mixture, the anti-sera will be a mixture of different types of the antibodies. Like here in this case, 4 types of antibodies against these 4 epitopes, and this is actually the mixture is known as polyclonal. अब इस मिक्सचर से हमने सिर्फ एक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल लेना है, लाइक इट विल बी हैविंग 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें से हमने एक टाइप ऑफ सेल को सेलेक्ट करना है, हाइब्रिडोमा बनाने हैं, और वो हाइब्रिडोमा बनाने हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करें, और वो बनाने हैं लाइक स्पेसिफिकली कि वो डिजायर्ड एपिटोप के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करें। सो वी विल टेस्ट दीज क्लोन्स, लाइक दीज आर डिफरेंट क्लोन्स एंड वी विल टेस्ट देम, एंड लाइक आई थिंक लाइक एंटीबॉडी 3 इज माय डिजायर्ड वन। सो एंटीबॉडी 3 प्रोड्यूसिंग ये जो सेल्स हैं ये मैं लूँगा यहाँ पे, और इसको लाइक मैं कल्चर करूँगा, या मैं फिर एनिमल में इंजेक्ट करूँगा, या इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ, फ्रीज कर सकता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म यूज, and like it can be produced, like it will gonna produce antibodies in 2 different ways, like here. ठीक है, तो is it सर clear? यहाँ पे भी तो कंटेमिनेशन के चांसेस आ सकते हैं ना, जब हम उससे मतलब लेट सपोज हमने एंटीबॉडी 3 अगर हमने अलग निकालनी है, तो सर यहाँ पे भी जब हम लोग सेपरेट आउट करेंगे तब अगर यहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस आ गए तो ये फिर ज्यादा रिस्की नहीं होगा कि अगर थ्रू नहीं, आउट फिर हम माइस में इंजेक्ट करेंगे तो फिर सारा प्रोसेस ही खराब हो जाएगा। नहीं, इसमें इस तरह होता है कि यहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत होते हैं, सेल कल्चर में कंटेमिनेशन के चांसेस तो बहुत होते हैं, लेकिन दिस इज द ओनली वे कि लाइक मैं इसमें सिलेक्शन करूँ कि कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल में ले लूँ, ठीक है। सो जो कंटेमिनेशन है उसके चांसेस को कम करने के लिए लोग ये तो प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट एनिमल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, वहां पे लाइक इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। कुछ लोग जो हैं ये माइलोमा सेल्स जो है इसको फ्रेश करने के लिए, या अगर ये कंटेमिनेट हो गए हैं ना तो इसको क्या करते हैं, इसको एनिमल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं एनिमल में, वहां पे ये मल्टीप्लाई करते हैं, वहां से दोबारा ले लेते हैं, तो रिफ्रेश करने के लिए भी एनिमल्स को यूज करते होते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर ये जो माइलोमा सेल है ये भी हम सेम उसी माइस में से लेंगे ना जिसमें से हमने स्प्लीन में से एंटीबॉडीज हाँ, ली हैं? ये माइलोमा सेल्स जो है ये कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है। लाइक मैं अगर काम कर रहा हूँ
एनिमल्स में मैंने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने हैं। सो मेरे पास रैबिट्स हैं, ठीक है। तो रैबिट्स में मैं एंटीजन को इंजेक्ट करूंगा, वहां से मैं प्लाज्मा सेल्स, स्प्लीन सेल्स लूंगा। तो मेरे पास माइलोमा सेल नहीं है, तो आई विल परचेज माइलोमा सेल्स ऑफ रैबिट्स, ठीक है। सो रैबिट्स के माइलोमा सेल्स मैं लूंगा और माइलोमा सेल्स के साथ मैं इसको फ्यूज करूंगा फिर। सर कोरोना के केस में भी तो ऐसे एंटीबॉडीज बनाई जा सकती हैं। एग्जैक्टली, कोरोना के केस में भी इसी तरह बनाए जाते हैं, बनाए नहीं जा सकते, बनाए जाते हैं। लाइक ये एलाइजा किट्स जो है ना, वो इसी तरह होते हैं। एलाइजा किट्स जो बनती है ना वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए, एलाइजा किट्स में एंटीबॉडीज जितने भी यूज होते हैं वो इसी तरह बनाए जाते हैं। पर सर क्या वो एंटीबॉडीज इतनी रिलायबल होंगी? हाँ, रिलायबल होते हैं। आजकल तो बहुत सारे टेक्निक्स आ गई हैं, लाइक एनिमल्स को स्किप किया जाता है, एनिमल्स को यूज ना करने के भी बहुत सारे तरीके कि इसको यूज ना किया जाए एनिमल्स को। व्हाट वाज योर क्वेश्चन? रिलायबल? सर अगर हम कोरोना का केस देखते हैं तो उसमें क्या इस तरह की एंटीबॉडीज रिलायबल होंगी? यानी जब हम उसे दोबारा ह्यूमंस पे अगर हम डालेंगे तो 2 माह बाद तो उसका फिर इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं, वो एंटीबॉडीज हम ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं, वो एंटीबॉडीज हम डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो सकती है, लाइक सेकेंडरी एंटीबॉडीज कैन बी यूज लाइक पैसिव इम्यूनिटी, लाइक पीपल आर यूजिंग पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। लेकिन लाइक वो क्लियर आउट होना इज समथिंग एल्स। वो इस वजह से नहीं होता कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई होती हैं और वो खुद खत्म हो जाती हैं। ये एक फैक्ट है, लाइक अभी से ये समझ लें कि ये फैक्ट है कि जो वायरस या जो भी एंटीजन है जब जल्दी खत्म हो जाए, असल में हमारा पूरा ये टॉपिक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि आवर टॉपिक इज डिफरेंट यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट ये समझ लें कि जो लाइक इम्यून सिस्टम हैज द ब्यूटी कि जो एंटीजन बहुत जल्दी क्लियर हो जाए ना, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सही मेच्योर नहीं होती, लाइक स्पेसिफाई नहीं हो, स्पेसिफिक एंटीबॉडी सही नहीं बनती क्योंकि वो एंटीजन बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, ठीक है। जो एंटीजन क्लियर सही नहीं होता उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं और वो दे आर स्पेसिफिक इनफ टू लाइक वो जो है वो लाइक दे आर मोर लाइक एक्यूरेट एंड दे आर मोर प्रिसाइज। फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी में रहती है ना, क्योंकि एंटीजन। हाँ, नहीं मैं एक और एस्पेक्ट से भी कह रहा हूँ। अब अगर हमारा जब ये वैक्सीनेशन क्यों करते होते हैं, लाइक कोरोना के केस में वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हैं या लाइक दूसरे उसमें वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हैं, लाइक ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी यही होता है कि लाइक हम यहाँ पे इसको एंटीजन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये खाली एंटीजन नहीं होगा, इसके साथ एडजुवेंट भी ऐड करते हैं। एडजुवेंट ऐसी चीज है जो इस एंटीजन को प्रोटेक्ट करे और जल्दी क्लियर ना होने दें, ठीक है, ताकि ये बहुत देर तक प्रेजेंट हो एनिमल को, वहां पे प्रॉपर एनिमल जो है इसको रिकॉग्नाइज करे, एंटीजन को, इसके स्पेसिफिक एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करें और मैच्योर और सही लाइक प्रिसाइज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सके फॉर रिकॉग्निशन। वंस दोस एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, तो उसके बाद हम इसके स्प्लीन के सेल्स लेंगे इसके लाइक और कोरोना के केस में कोरोना बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, ठीक है। कोरोना जब बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है तो उसके एंटीबॉडीज, प्रिसाइज एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर एंटीबॉडीज जो हैं वो कुछ वक्त बाद खत्म हो जाती हैं। अच्छा, अब होगा क्या, जो वैक्सीनेशन लोग करते होते हैं तो उसमें उसके साथ एडजुवेंट ऐड कर देते हैं और बूस्टर डोजेस देते हैं, 3-4 डोजेस देते होते हैं इसमें, ठीक है। तो उससे ये होता है कि 3-4 डोजेस देने से लाइक वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर क्लियर नहीं होती हैं, दे आर सस्टेनेबल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। This is Okay, sir. ठीक है। Okay, So, sir. should we go further? Yes, sir. Okay, and standard are calibrators, like they are used. This is another point, like calibrators are solutions with known values. अब अगर हमने इस तरह करना है, लाइक हमने किसी पेशेंट में लाइक डिटरमिन करना है कि इसमें एंटीजन कितना है, सो हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता उसके लेवल का नहीं पता होता कि इसमें कितना लाइक वो एंटीजन है। तो उसको लाइक
to quantify the antigen, we need to have calibrators. And calibrators, what are calibrators? Actually, calibrators are solution with known values that establish the relationship between the amount of signal produced in the assay or the annihilate concentration. So they establish the relationship when these known values, they establish the relationship between the signal and the annihilate concentration. So हमने जो concentration हम चाह रहे होते हैं कि हमें concentration का पता चल जाए, हमें हम quantify कर सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक known solution हो जिसमें हमारे पास known values आए, जिसके थ्रू आए. अगर हम देख लें calibrators को, so it will give us calibration curve, and that set up the instrument software and correlate certain values of the signal to known annihilate concentration. यहाँ पे देखें, अगर हम ये हमारे पास नोन होगा कि अगर हम यहाँ पे 5 कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं तो सिग्नल हमारे पास यहाँ पे आएगा. अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे 10 मॉलिक्यूल्स कह देता हूँ, तो उसका सिग्नल यहाँ पे आएगा. अगर मेरे पास 15 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका सिग्नल यहाँ पे आएगा. अगर मेरे पास 20 है तो उसका सिग्नल यहाँ पे आएगा. सो दिस इज द नोन वन. नाउ ये हमारे पास अब कैलिब्रेशन कर्व है. अब मैं सैंपल ले लेता हूँ और उसमें मुझे नहीं पता होता कि कंसंट्रेशन कितने, हाउ मच इज द कंसंट्रेशन, और सिग्नल मेरे पास यहाँ पे आ जाए, तो मैं ये कहूंगा कि ये 3 है, 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. अगर सिग्नल मेरे पास यहाँ पे आ जाए तो मैं कहूंगा कि जो पेशेंट का सैंपल है उसमें 5 मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. सो समझ आ गई इसकी कि व्हाई वी नीड कैलिब्रेटर्स. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and now by comparing the level of signal produced by the patient sample to its to this calibration curve, a patient annihilate concentration value or result can be determined. Is it clear? Yes, sir. कोई explain कर Yes, देगा sir. please? कौन करेगा इसको explain? अनाया आप कर दो please. अनाया मंजूर. जी सर. जी प्लीज ये एक्सप्लेन कर दें. सर कैलिब्रेटर्स जो होते हैं ना, वो नोन कंसंट्रेशन के जो नोन वैल्यूज होते हैं ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन जो है ना एनालिट की, जो पेशेंट में अगर हमने ब्लड लिया तो उसमें कितनी एनालिट की कंसंट्रेशन है. तो अगर जैसे आपने बोला कि वो हमें एक सिग्नल एक कर्व होता है जिससे हमें पता चलता है, अगर जैसे 5 पे आया है तो उसका जो सिग्नल है वो बी आएगा. अगर 10 पे उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 10 मॉलिक्यूल्स की है तो उसका जो सिग्नल होगा वो सी होगा, कि मतलब कि उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स है, एनालिट जो है वो 10 उसकी कंसंट्रेशन है. तो तो ये उस तरह हमारे हम उसको पास पहले कंपेयर करके जी हम हाँ पेशेंट के, ये हमारे पास पहले से होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, और उसको हम फिर पेशेंट के जो हमने सैंपल लिया उसके साथ कंपेयर करके हम उसकी हाँ कंसंट्रेशन जो होती है उसको एग्जैक्टली. पता कर सकते हैं. अनाया अब देखें, मेरे पास एक किट है एंड आई वांट दैट टू एलाइजा किट है और मैं उसको यूज कर रहा हूँ. सो मैंने पहले क्या करना है, मैंने उसके कैलिब्रेटर्स को यूज करना है और कैलिब्रेटर के साथ मेरी ये वैल्यूज आनी चाहिए इस तरह. ठीक है. अगर ये वैल्यू आई तो इसका मतलब है मेरी हैंडलिंग ठीक है एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस सक्सेसफुली. उसके बाद मैं सैंपल लूंगा, ब्लड सैंपल्स हैं, और उसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा. उनके वैल्यूज को फिर मैं बता सकता हूं कि ये इसमें कंसंट्रेशन इतनी है, इसमें कंसंट्रेशन इतना है, एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ कैलिब्रेटर्स आर द स्टैंडर्ड्स. इसको हम स्टैंडर्ड्स भी कह सकते हैं, कैलिब्रेटर्स भी कह सकते हैं. दे आर इंपॉर्टेंट. समझ आ गई कि व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट. अगर ये ना हो तो हमें कंसंट्रेशन का पता नहीं चल सकता. यस सर. ठीक है, चले, दैट्स गुड. सो और कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? उमर आप एक्सप्लेन कर दोगे इसको? उमर इज देयर? उमर राशिद. यस सर. जी ये स्लाइड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. सर मैं असल में ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए मैं कर नहीं सकता अभी. अच्छा, तो आप ट्रैवल ड्राइविंग कर रहे हो? यस सर. चले. अच्छा, उसामा है? उसामा जी सर. जी बताएं ये स्लाइड पे क्या है.
सर ये बेसिकली कैलिब्रेटर्स के बारे में है कि हमें नॉन सॉल्यूशंस के वैल्यूज का पता होते हैं हम, तो फिर सर मालूम कर सकते हैं एनालिट की कंसंट्रेशन सर। ठीक है, किस तरह हम कर सकते तो हैं? कैलिब्रेशन कर्व के जरिए सर हम जो है ना सर, हमारे पास सर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके जरिए हम वो कर सकते हैं सर, रिलेट करते हैं सिग्नल की वैल्यूज के और एनालिट कंसंट्रेशन के साथ सर। जब हम कंपेयर करते हैं सिग्नल्स को सर, जो पेशेंट के होते हैं सर सैंपल, तो कैलिब्रेशन कर्व से हम फिर सर वो जो है ना एनालिट कंसंट्रेशन जो होता है रिजल्ट, उसका फिर हम मालूम कर लेते हैं। ठीक हो गया, चले इसको थोड़ा सा आपने देखना भी है, ठीक है। सो सर थोड़ा सा जी जी सर वो जो एनालिट कंसंट्रेशन है, एनालिट यहाँ पे एंटीबॉडीज हैं या फिर एंटीजन है? हम किस ये चीज को असल कॉल में नहीं, ये एनालाइट इस वजह से कहा गया है कि कुछ केसेस में ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। कुछ केसेस में हम चाह रहे होते कि हमें एंटीबॉडीज का पता चल जाए, ठीक है, कि एक सोल्यूशन में एक सैंपल में, ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज मौजूद है कि नहीं। लाइक कोरोना के केस में देख लें या HCV के केस में देख लें, अगर एंटीबॉडीज हम जांचना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हुई है कि नहीं। सो हमने वहां पे क्या देखना है, वहां पे हमने एंटीबॉडीज देखनी है, तो एंटीबॉडीज के लिए अलग से एक कर्व बनना है, ठीक है। कुछ किट्स हैं जिसमें एंटीजन को देखा जाता है, लाइक वायरस के प्रोटीन को देखा जाता है, ठीक है। सो वहां पे एंटीजन को देखा जाएगा। सो एनालाइट कुड बी एंटीजन और कुड बी एंटीबॉडी, both can happen, both work for that। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो एंटीबॉडी भी हो सकते हैं, एंटीजन भी हो सकते हैं। अगर ये कोई एक होता ना, तो ये यहाँ पे स्पेसिफिकली एक ही लिखा जाता। तो एनालाइट का मतलब है जिसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। ओके सर, ठीक है, ठीक है। चलें। एंड नेक्स्ट इज separation methods are there, like how we could separate। अब इशू क्या आ रहा है, अगर हम एंटीबॉडी हमारे पास है और हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये एंटीजन के साथ बाइंड हो रहे हैं कि नहीं, सो वी विल लाइक रिएक्ट द एंटीबॉडी विद द एंटीजन। There will be several types of antibodies. There will be several antibodies that will go unreacted. Like maybe the antigen is less, like we have 5 molecules of antigen and we have 10 molecules of antibody. So 5 will react here and the remaining 5 will be unreactive. So those unreactive antibodies could be removed and they must be removed. हमने उसको रिमूव करना है ताकि जो रह गए हैं उसी को हम डिटेक्ट कर सकें। सो देयर मस्ट बी अ मेथड फॉर सेपरेशन एज वेल, ठीक है। सो इन मोस्ट एसेज, once the reaction between antigen and antibody has taken place, there must be a way of separating reacted from unreacted analyte। so कोई तरीका होना चाहिए जिसमें हम रिएक्टेड और अनरिएक्टेड एनालाइट को सेपरेट आउट कर सके, ठीक है। सो दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय सेवरल मींस। Unreacted analyte can be removed by adsorption on particles such as dextran coated charcoal, DCC भी कहते हैं। These absorb out the smaller unbound molecules। जो unbound molecules हैं ये उसको absorb कर लेंगे, which are then separated from the bound molecule by centrifugation or filtration। तो ये जब absorb करेंगे तो उसके बाद हम अगर उसको centrifuge कर लें तो ये नीचे बैठ जाएंगे, तो बाकी जो ऊपर रह गया, so those will be the reacted ones। Yeah, the amount of the label remaining in the supernatant provides, हो जो supernatant में जो रह गए provides an indirect measure of the analyte present in the patient sample in RIA। so RIA हम पढ़ चुके हैं पहले, so that is like उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव एनालाइट्स को वो सेपरेट किस तरह करना है। सो वन ऑफ द मेथड इज डेक्सट्रेन कोटेड चारकोल। इसमें क्या होगा कि जो अनबाउंड मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं वो चारकोल एब्सॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, तो ऊपर जो सुपरनेटेड में जो रह जाए, that will be the analytes that are bound। The involves precipitation कर सकते
सकते हैं एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स की, एंड दिस कॉम्प्लेक्सेस कुड बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इम्यूनियम सल्फेट और एथेनॉल। एथेनॉल या इम्यूनियम सल्फेट को अगर यूज कर लें तो हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, ये नीचे बैठ जाएंगे। बाकी जो लाइक कॉम्प्लेक्स नहीं है वो लाइक वी कैन लाइक वॉश देम आउट। An antigen antibody complex can also be removed from the solution by the use of second precipitating antibody, so antibody। तो ये क्या होगा, इससे पहले क्या था कि एंटीबॉडी एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा था, अगर हम एक और एंटीबॉडी यूज कर लें जो पिछले वाले एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाए तो इससे भी हम ये हम प्रेसिपिटेटिंग एंटीबॉडी हम यूज कर सकते हैं, दूसरी एंटीबॉडी जो पिछले वाले एंटीबॉडी के साथ बाइंड करें एंड इसको सेपरेट कर लें फ्रॉम द अनबाउंड। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अब इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, कोई बंदा इसको एक्सप्लेन कर दे। मैं कर दूं? जी जी सर मैं कर दूं? जी कर दें। सर इसमें हमने देखा था कि एंटीबॉडीज को जब हम रिएक्ट कराते हैं कि और जो सब अनरिएक्टेड होते हैं तो उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, उसके लिए हमने मेथड देखे हैं। 3 मेथड हैं। पहला एक मेथड है एडजॉर्प्शन का, उसमें हम डीओसी यूज करते हैं, उसमें डीओसी यूज करते हैं। दूसरा जो मेथड है कौन सा, प्रेसिपिटेशन। जी जी प्रेसिपिटेशन। और तीसरा है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसके जब बन जाता है उसको उससे मेथड से भी हम इसको जो अनरिएक्टेड है उसको भी हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अच्छा, ये थर्ड मेथड में हम ये कर सकते हैं कि ये सेकेंडरी एंटीबॉडी अगर किसी लाइक किसी सपोर्ट के साथ हम बाइंड करें तो जो पिछली वाली एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच है तो वो उसके साथ बाइंड हो जाएगी एंड दैट्स प्रेसिपिटेट आउट। यहाँ पे इसका हम इसकी हमने एक एग्जांपल पढ़ी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे लाइक अगर मैं वहाँ पे चला जाऊँ सर वो स्क्रिप्टामिडीन और बायोडीन वाली। हाँ एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हम उसको लाइक यहाँ पे बाइंड हो रहा है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाइंड हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड एंटीबॉडी हम यूज कर रहे हैं, इसको सेपरेट आउट कर रहे हैं, जो अनबाउंड है उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, Yes, sir. so this can be done like that. We have different separation methods like how we can separate out. आपको स्लाइड शो हो रही है? यस सर। Okay. So we have different separation methods like how we can separate out the unbound analyte from the bound, and currently most of immunoassays they use a solid phase stage for separation. Solid phase stage जो है वो separation के लिए use करते हैं immunoassays में, and numerous substances such as polystyrene test tubes भी use होते हैं। माइक्रो टाइटर प्लेट्स, ये देखें, दिस इज द माइक्रो टाइटर प्लेट, एलाइजा प्लेट है ये, एंड इसमें ये लाइक ये ईच वेल दे रिप्रेजेंट अ सिंगल टेस्ट ट्यूब। लाइक ये टेस्ट ट्यूब को लाइक टेस्ट ट्यूब बहुत सारे टेस्ट ट्यूब यूज होंगे तो उससे अच्छा है कि हम एक ही प्लेट यूज कर लें और लाइक दिस विल सर्व आवर पर्पस। इसमें 96 वेल्स हैं, सो 96 सैंपल्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो एंटीजन और एंटीबॉडी इज अटैच्ड। अब इस केस में क्या होगा कि एंटीबॉडी या एंटीजन को अटैच किया जाता है बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड व्हेन स्पेसिफिक बाइंडिंग टेक्स प्लेस complexes remain attached to the solid phase। अब इसमें करते क्या है कि लाइक एक सॉलिड फेज है हमारे पास, उसके साथ लाइक मैं ये वैसे ही इस तरह दिखा देता हूँ कि ये एंटीबॉडी को पहले कोट किया जाता है ऑन द सॉलिड सपोर्ट। अब यहाँ पे कोट किया गया, इसको एब्जॉर्ब किया गया, यहाँ पे ये बाउंड हो गया। अब इसके बाद एंटीजन को अटैच करवाया जाता है। ठीक है, सो द एंटीजन आर अटैच नाउ। अब ये जो है एंटीजन जब बाउंड हो गए, अब वॉशिंग स्टेप जब होंगे तो ये यहाँ पे अटैच रह जाएगा, बाकी चीजें वॉश हो जाएंगी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जैसे। हाँ एग्जैक्टली उसी तरह ये इस केस में भी इसी तरह होगा, इस केस में भी इसी तरह होगा। ठीक है, या हम ये कर देते हैं कि इन अदर केस हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एंटीजन को पहले अटैच करवाया जाए। ठीक है,
एंटीजन को अटैच करके एंटीबॉडी को फिर बाइंड करवाया जाता है, एंड इसके बाद वॉशिंग स्टेप, ठीक है, मींस एंटीजन अटैच करके वॉशिंग, फिर ये एंटीबॉडी बाइंड हो जाते हैं, फिर वॉशिंग। तो ये सॉलिड सपोर्ट जो है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और ये जो सॉलिड सपोर्ट है, दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट। ये सॉलिड फेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। So this is how like separation is easy in this context, and this provides a simple way to separate bound from the free reactants, ठीक है, and that's it.